Good morning, dear friends. I once again welcome you in our today's online lesson. So, we have been discussing since yesterday the lesson Deep Water of our Flamingo book by William Douglas. We have seen that a boy, William Douglas, he was very much afraid of water, and Mr. William Douglas had given certain examples, certain memories related to his life that has become a source of the fearfulness and scars and the scare of the water by William Douglas. We have also seen that this is an autobiographical account of the life of William Douglas, which has made this story very much typical and very much sensitive enough, because whenever we come across a story which has some autobiographical element or some truth of the life or some reality in it, uh, in a way it has been a very close to our heart. So that is this exact story related to this lesson. Deep water also has a very fine message regarding the courage we should have in our life, and it also gives a message of bravery, a message of returning to our life even if we have seen a dead end. So, yesterday we have seen the first part of this lesson, and now today we will continue the same, and we will try to finish this lesson today itself. Yes. So, Deep Water by William Douglas. We have seen this yesterday, Yakima River, the city Yakima, okay, and then YMCA, Young Men's Christian Association, okay, all these things we have seen. Then word meanings, and I hope you have gone through the whole explanation of the chapter up to which we have seen yesterday. So, in a nutshell, we can say that young William, he was very much afraid of water because of some instances when he was 3 to 4 years old. He went to California on a beach with his father, and there he had a bitter experience with the surf of the beach, early waves of the beach, and he thought that he was nearly drowned in the water. And since that day, since when he was 4 years old, a very horrible kind of fear absorbed in his mind, and it has continued till he was 11 to 12 years old. But when he started going to school, and when he became 11 years old, again a desire to a desire for swimming arrived in his mind, and he joined the YMCA club. What? YMCA, yes, it is YMCA. Yes, YMCA club, Young Men's Christian Association club, because the YMCA pool was very much safe in comparison to the river. Which river? Yakima River. And his mother also warned him against
the river, because there were so many cases of drowning happened there every day. So mother was very much panic. Mother was very much, you see, careful about William. So William decided to start his practice of swimming in the YMCA pool. But one day, a very bad experience he had undergone. A bruiser of a boy, a healthy boy, he came there, and in a crafty, you see, in a very much foolish way, he dug William into the water, and the whole several passages, you see, William Douglas has written in this lesson regarding his experience inside the water. Okay, so for three times he has written that for three times he found himself in a very much critical condition, and at last, when he had lost all hopes and he stopped all efforts to become alive, sorry, uh, to live once again, or something else. What happened then? He lost all hope, and then he stopped all the efforts. Okay, and then all efforts ceased. I relaxed. Even my legs felt limp, and a blackness swept over my brain. Blackness swept over my brain. It wiped out fear. It wiped out terror. There was no more panic. It was quiet and peaceful. Nothing to be afraid of. This is nice. To be drowsy, to go to sleep. No need to jump. Too tired to jump. It's nice to be carried gently, to float along in space. Tender arms around me, tender arms like mother's. Now I must go to sleep. So these are the, you see, these are his uh, mm, this is his thinking, you see, when he lost all hope of uh, becoming alive furthermore from that very terrible experience. But I crossed to oblivion, and the curtain of life fell. उसको ऐसे लगा दोस्तों जैसे कि अब उसकी पूरी लाइफ खत्म हो चुकी है, और आप ये मान के चलिए कि पूरे हम बोल भी नहीं पा रहे हैं कि उसने 3 बार वो अपने पैर वो स्विमिंग पूल के नीचे जो टाइल लगी होती है वहां पर लगाया, 3 बार ऊपर आने की कोशिश की. इट मीन्स दैट फॉर 3 टाइम्स he struggled a lot to uh, keep himself alive, to get himself out from that critical experience, but it in vain. And at last he thought that it is better to die than to make any kinds of efforts. So I crossed to oblivion and the curtain of life fell. बोलता है मैं बस अनकॉन्शियस हो गया, एकदम से मैंने सारा प्रयत्न जो था, सारा एफर्ट्स करना बंद कर दिया, और मेरे लाइफ का कर्टेन जैसे, हो सकता है उसको नींद लग गई या जो भी हो, है ना, वो अनकॉन्शियस हो गया. द नेक्स्ट आई रिमेंबर आई वॉज लाइंग ऑन माई स्टमक beside the pool, vomiting.
उसके बाद जैसा कल मैंने आपको बताया, जैसा हम फिल्मों में वगैरह देखते हैं ना, बाहर निकालते हैं कई लोग और फिर जो है वोमिट करना चालू करता है, पानी उसके फेफड़ों में भर जाता है, पूरे शरीर में भर जाता है। द चैप, वो बच्चा, दैट थ्रू मी इन वॉज सेइंग, वो बच्चा वहाँ पर था जो बोल रहा था, बट आई वॉज ओनली फूलिंग, बोल रहा था कि अरे मैं तो बस मजाक कर रहा था। समवन सेड द किड नियरली डाइड, अरे ये कैसा मजाक है, किसी ने कहा, बच्चा तो मर जाता। बी ऑल राइट नाउ, लेकिन अब सब ठीक है। लेट अस कैरी हिम टू द लॉकर रूम, चलो इसको रूम के अंदर ले जाते हैं। तो इस एक्सपीरियंस से तो बच गया, लेकिन जो डर है मिस एडवेंचर का, जो डर है उसके दिमाग में कि पानी में जाने के बाद, देखा ना आपने कितना समय तक वो 3 बार उसने ऊपर आने की कोशिश की, कितने बुरे समय से वो गुजरा। तो वो डर ऐसा उसके मन के अंदर बैठ गया कि वो पानी से वो जो है फिर से उसकी दोस्ती शायद ही हो पाएगी। लेकिन क्या हुआ आगे देखते हैं। सेवरल आवर्स लेटर आई वॉकड होम, आई वॉज वीक एंड ट्रिम्बलिंग, कुछ घंटों बाद मैं घर गया। मैं बड़ा वीक हो गया था, पूरी शक्ति मेरी क्षीण हो गई थी, खत्म हो गई थी, और मैं थर थर काँप रहा था। आई शुक एंड क्राइड व्हेन आई ले ऑन माई बेड, ले होता है दोस्तों लाए का पास्ट टेंस, लाए यानी पड़े पड़े रहना, लेट जाना, लाए। देखिए 3 फॉर्म है, लाए, ले, और थर्ड फॉर्म है लेन। ठीक, तो वो अपने घर गया, मदर को पूरी इंसिडेंट उसने बताई होगी। ओके, एंड आई ले ऑन माई बेड बट आई कुडंट ईट दैट नाइट। वो इतना हॉन्टिंग एक्सपीरियंस था उसके जीवन के लिए। वो 11-12 साल का बच्चा, आप सोचिए कि वो उस रात खाना नहीं खा पाया। फॉर डेज ए हॉन्टिंग फियर वॉज इन माई हार्ट, कई दिनों तक उस पानी का डर जो है, हॉन्टिंग, सताता रहा उसको, पीछा करना उसको बोलते हैं हॉन्टिंग। द स्लाइटेस्ट एक्सर्शन अपसेट मी, थोड़ा भी एक्सर्शन, थोड़ा भी जो है मेहनत उससे हो जाती तो अपसेट हो जाता हूँ। मेकिंग मी वॉबली इन द नीज एंड सिक टू माई स्टमक, पूरा शरीर जो उसको साथ देना बंद कर दिया। थोड़ा भी जो है अगर वो काम करने लगता या कुछ कार्य करने लगता, कुछ वर्क करने लगता, तो अचानक से उसके नीज जो है वॉबली हो जाते, वॉबली हो जाते मतलब उसका काम करना बंद कर देते। एंड सिक टू माई स्टमच, और पेट में जो है उसके एकदम से अजीब सा लगने लगता। आई नेवर वेंट बैक टू द पूल, मैं फिर से एक बार, फिर से कभी उस YMCA पूल में नहीं गया। आई फियर्ड वाटर, उसके अंदर क्या बैठ गया, वाटर का डर बैठ गया। आई अवॉइडेड इट वेन एवर आई कुड, जब भी जो है मैं, मेरी कोशिश ये रहती कि पानी से मैं थोड़ा सा बचकर ही रहूं, दूर रहूं। लेकिन क्या हुआ, इस तरीके से साल बीतते चले गए। लाइफ मस्ट गो ऑन, ओके, लाइफ तो चलती रहती है। अ फ्यू ईयर्स लेटर, लेटर यानी बाद में, व्हेन आई केम टू नो द वाटर्स ऑफ द कैस्केड्स, कैस्केड्स होता है दोस्तों, कैस्केड्स मीन्स वाटरफॉल। कैस्केड यानी क्या होता है, वाटरफॉल, वाटरफॉल होता है ना, झरने, ये बड़े बड़े वाटरफॉल। तो अमेरिका में बड़ा वो है, आप जाएंगे, मान लीजिए बड़े बड़े वाटरफॉल्स देखने लोग जाते हैं। जैसे कैसे हमारे यहाँ सापुतारा में पहाड़ देखने आते हैं लोग, फॉग देखने आते हैं, वैसे वहाँ जो है वाटरफॉल्स, जैसे अब देखिए नायगरा वाटरफॉल है, वो सारे चीज़ें। तो आई केम टू नो द वाटर्स ऑफ कैस्केड्स, आई वॉन्टेड टू गेट इन टू देम, लेकिन वाटर ऑफ कैस्केड्स में मैं चला गया। एंड वेन एवर आई डिड, जब भी मैं पानी के अंदर जाता, वेदर आई वॉज वेडिंग द टीटॉन और बम्पिंग रिवर और बाथिंग इन वार्म लेक ऑफ द गोट रॉक्स, ये सब वहाँ के जो है मान लीजिए हिल स्टेशन जैसे है ना, वाटरफॉल्स वाली जगह है। द टेरर दैट हैड सीज्ड मी इन द पूल वुड कम बैक, तो जब भी कभी मैं, देखिए ना कुछ वो नए शब्द हैं, टीटन, बम्पिंग रिवर और बाथिंग करने जाता या वारम लेक में जाता,
समझ में, रिवर लेक, ये सारी जो है, कोई रिवर होंगी, लेक होगा, वहाँ पे जब भी वो जाता तो वो जो टेरर है पानी का वो उसके अंदर लौट आता। इट वुड टेक पोजेशन ऑफ मी कंप्लीटली, पूरे दिल के ऊपर, पूरे शरीर के ऊपर उस छा जाता। माई लेग्स वुड बिकम पैरालाइज्ड, उसके पैर एकदम पैरालाइज्ड हो जाते, उसके पैर एकदम से जैसे लकवा मार जाता है वैसे हो जाते। आईसी हॉरर वुड ग्रैब माई हार्ट, उसके पूरे बदन में, उसके पूरे दिल पर जो है एक तरीके का डर, हॉरर जो है, फियर जो है वो छा जाता। दिस हैंडीकैप स्टेड विथ मी एज द ईयर्स रोल्ड बाय, बोलता है ये हैंडीकैप, ये सिचुएशन जो है, ये हैंडीकैप सिचुएशन, ये बड़ी बुरी सिचुएशन जो है उसके साथ कई समय तक रही, कई वर्षों तक रही। इन इन कैनोइज ऑन मेने लेक्स, कैनोइज होता है बोटिंग, छोटी बोट होती है, ठीक है। इन कैनोइज ऑन मेन लेक्स फिशिंग फॉर लैंडलॉक्ड सैल्मन, सैल्मन होता है दोस्तों अ काइंड ऑफ फिश, सैल्मन क्या है, एक फिश है, फिश का प्रकार है सैल्मन, ठीक है ना। तो जब भी कभी वो क्या कैनोइंग करने जाता मेने लेक्स में या फिशिंग करने जाता, तो ये जो डर है उसका पीछा वहां पर भी नहीं छोड़ता। Yes, salmon, bass fishing in New Hampshire, trout fishing on the Deschutes, and Metolius in Oregon, fishing for salmon on the Columbia, at Bumping Lake in the Cascades, whenever I went, जब भी कभी वो जाता, देखिए सारे के सारे नाम गिनाए उसने, हाँ, ये सारी जगह है वहाँ की, अमेरिका की सारी जगह है, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। ये सारी की सारी क्या है, जगह है, सब जगह वो सैल्मन फिश की फिशिंग करने जो जाता है या और कोई काम करने जाता है, कोलंबिया, ये सारी की सारी जगह है। एट बम्पिंग लेक इन द कैस्केड्स वेन एवर आई वेंट, जब भी मैं इन सारी जगहों पर जाता, द हॉन्टिंग फियर ऑफ द वाटर फॉलोड मी, हर जगह जो है ये हॉन्टिंग फियर जो है क्या होता, मेरा पीछा करता। इट रूइंड माई फिशिंग ट्रिप्स, तो इस वजह से मैं कोई फिशिंग ट्रिप्स पर नहीं जाता। इट रूइंड यानी बर्बाद कर देना, रूइंड यानी बर्बाद कर देना, खत्म कर देना, फिशिंग ट्रिप्स बर्बाद कर दी उसकी। डिप्राइव्ड मी ऑफ द जॉय ऑफ कैनोइंग, कैनोइंग यानी बोटिंग, ठीक है। कैनोए एक छोटी बोट होती है और बोटिंग यानी थोड़े से डबल लोग बैठने वाले, उसको बोटिंग बोलते हैं। एंड स्विमिंग, तो ये तीन चीज़ें वो बिल्कुल नहीं कर पाया अपने जीवन में यहाँ तक, है ना। कौन सी कैनोइंग नहीं कर पाया, बोटिंग नहीं कर पाया और स्विमिंग भी नहीं कर पाया। तो एक्सप्लेनेशन इसमें है, पूरा देख लीजिए। कैनोइज, देखिए कैनोइज का मतलब क्या होता है, स्मॉल बोट्स, रूइंड यानी डिस्ट्रॉयड, डिप्रॉयड यानी टू टेक अवे, है ना, वंचित रखना, क्या रखना, वंचित, किस चीज़ से वंचित रखा गया उसको, यस, किस चीज़ से, कैनोइंग से, बोटिंग से और स्विमिंग से। ओके, चलिए ये वो है, पूरा पढ़ लेना। ये ऑब्लिवियन स्टेट है, स्टेट ऑफ अनकॉन्शियसनेस, है ना। ये जो बारिश में जो वो पानी के अंदर से, सॉरी बारिश में नहीं, पानी के अंदर से जब बाहर आया तब की कहानी है, तब का चित्र है, एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताया। ओके फिर पूरा एक्सप्लेनेशन है, सब पढ़ लेना। I used every way I knew to overcome this fear, but it held me firmly in its grip. Finally, one October, I decided to get an instructor and learn to swim. लेकिन कुछ वर्षों तक यही कंडीशन मेरी रही, लेकिन फाइनली एक दिन मैंने डिसाइड किया, क्या डिसाइड किया कि अक्टूबर के महीने में उसने डिसाइड किया कि वो एक इंस्ट्रक्टर रखेगा। इंस्ट्रक्टर होते हैं स्विमिंग सिखाने वाले, हाँ, उनको बोलते हैं इंस्ट्रक्टर्स, ओके। ट्यूटर होते हैं वो, कोच होते हैं। तो एक इंस्ट्रक्टर रखेगा एंड लर्न टू स्विम, क्योंकि
पता नहीं स्विमिंग के साथ उसको कोई लगा होगा या जो भी होगा, है ना। स्विमिंग, फिशिंग, कई बात कर रहा है ना, स्विमिंग, फिशिंग, कैस्केट्स में जाना, वाटरफॉल देखना, अंदर से थोड़ा अच्छा लगता होगा उनको। आई वेंट टू ए पुल एंड प्रैक्टिस्ड 5 days ए वीक। एक पुल में वो गए, एक इंस्ट्रक्टर उन्होंने रखा, और 5 दिन वो क्या करते, 5 दिन वो प्रैक्टिस करते। एन आवर ईच डे, हर रोज 1 घंटा। द इंस्ट्रक्टर पुट ए बेल्ट अराउंड मी, इंस्ट्रक्टर ने उनके अराउंड एक बेल्ट लगा दिया था, और रोप अटैच्ड टू द बेल्ट वेंट थ्रू ए पुलई दैट रैन ऑन एन ओवरहेड केबल। देखिए आपको समझ में आया, एक पुलई जैसा रख दिया उन्होंने बीच में, ठीक है, और एक रोप इनके कमर में बांध देते, और वो रोप जो है वहाँ पे सामने कहीं एक हाथ पोल वोल पे बंधा रहता या वो इंस्ट्रक्टर के हाथ में रहता, और उस तरीके से ये तैरना सीखने लगे। A rope attached to the belt went through the pulley that ran on to the overhead cable. He held on to the end of the rope and we went back and forth across the pull. तो रस्सी के सहारे जो है वो चलते और आते, चलते और आते, है ना। स्विमिंग जो है इस तरीके से वो सीखना शुरू किए। बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द पुल, आवर आफ्टर आवर, डे आफ्टर डे, वीक आफ्टर वीक, इसी तरीके की प्रैक्टिस उनकी चलती रही घंटों, कुछ पहले कुछ घंटों तक, है ना, बाद में डे आफ्टर डे, बाद में वीक आफ्टर वीक, इसी तरीके की प्रैक्टिस चलती रही। एक बेल्ट बंधा रहता उन पे, और वो बेल्ट का दूसरा सिरा जो है वो इंस्ट्रक्टर के हाथ में या और कहीं बंधा रहता, और ये तैरते। ओके। ऑन ईच ट्रिप अक्रॉस द पुल अ बीट ऑफ द पैनिक सीज्ड मी। हर ट्रिप में देखिए बोलता है, बड़े भी हो गए अभी वो, लेकिन वो बोलता है कि एक बड़ा सा, एक बहुत दुख, दर्द और डर जो है मेरे मन के अंदर छिपा बैठा था, और जब भी मैं पानी में उतरता था वो डर बाहर आता था। ईच टाइम द इंस्ट्रक्टर रिलैक्स्ड हिज होल्ड ऑन द रोप, रिलैक्स करना छोड़ देना, एंड आई वेंट अंडर, सम ऑफ द ओल्ड टेरर रिटर्न एंड माई लेग्स फ्रोज। देखिए क्या बोल रहा है, जैसी वो इंस्ट्रक्टर कभी एक आध बार, अब उसको तो स्विमिंग सिखाना है ना, वो कभी कभी क्या कर देता, अपने हाथ से वो रोप को रिलैक्स कर देता, छोड़ देता। तो जैसी वो छोड़ता है, उनको पता चलता है कि रोप जो है उन्होंने छोड़ दिया है, रस्सी छोड़ दी है, एकदम से जो है वो पुराना डर रिटर्न होता उनके अंदर, वापस आता, जैसे कोई इंसान है, हाँ? समझ रहे ना, ये डर जो है एकदम पर्सोनिफाइड हो गया उनके साथ, उनके जीवन से जुड़ गया एकदम। ओके। On each trip across the pool, a bit of the panic seized me. Each time the instructor relaxed his hold, समझते ना, relaxed his hold, हाँ, हाथ से छोड़ देना, on the rope, and I went under. Some of the old terror returned and my legs froze. It was 3 months before the tension began to slack. लगभग 3 महीने लगे, ये जो टेंशन था, ये जो डर था, थोड़ा 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 स्लैक होने लगा। स्लैक यानी कम, रिलैक्स। ओके, स्लैक, देखिए शब्द है स्लैक। देन ही टॉट मी टू पुट माई फेस अंडर वाटर एंड एक्सहेल। उसके बाद जैसा एक तरीका होता है स्विमिंग सीखने का, सिखाने का, उन्होंने मुझे सिखाया, इंस्ट्रक्टर ने, कि कैसे पानी के अंदर जो है इनहेल और एक्सहेल किया जाता है। एंड टू रेज माई नोज एंड इनहेल, उन्होंने पहले उनको एक्सहेल करना सिखाया, मतलब सांस बाहर छोड़ना, एंड टू रेज माई नोज एंड इनहेल, और सांस को अंदर लेना सिखाया। आई रिपीटेड द एक्सरसाइज हंड्रेड्स ऑफ टाइम। देखिए क्या बोल रहे हैं, मैंने सैकड़ों बार उस एक्सरसाइज को किया, ये इनहेल और एक्सहेल वाली। बीट बाय बीट, धीरे धीरे, आई शेड पार्ट ऑफ द पैनिक। शेड पार्ट यानी छोड़ देना, शेड पार्ट का मतलब होता है छोड़ देना, हाँ, खत्म कर देना। और धीरे धीरे धीरे, बीट बाय बीट, उनका जो पैनिक था, उनका जो डर था, उनका जो दुख भरा एक्सपीरियंस था, वो धीरे धीरे कम होने लगा। दैट सीज्ड मी व्हेन माय हेड वेंट अंडर द वाटर। नेक्स्ट ही हेल्ड मी एट द साइड ऑफ द पुल एंड हैड मी किक विथ माय लेग्स। उसके बाद उन्होंने दूसरा जो है
तरीका मुझे सिखाया कि किस तरीके से पुल के अंदर पानी में किक लगाते हैं लेग्स के द्वारा। फॉर वीक्स आई डिड जस्ट दैट, कई हफ्तों तक तो बस वही किया मैंने। एट फर्स्ट माई लेग्स रिफ्यूज टू वर्क, पता है ना कि एकदम से लेग्स उनके फ्रीज हो जाते। शुरुआत शुरुआत में उनके पैर जो है वो मना कर देते, पैर मना कर देना। देखिए फिर से एक बार पर्सोनिफिकेशन का यूज़ किया है यहाँ पर। शुरुआत शुरुआत में जो है उनके लेग्स मना कर देते। लेग्स कब मना करते हैं? जब अपनी माइंड जो है उनको कुछ इंस्ट्रक्शंस देता है। माइंड में क्या भरा है उनके दोस्तों? माइंड में जो है उनके पूरा डर भरा है। देखिए अपना हाथ तभी काम करता है, मुंह तभी काम करता है, अपने पैर तभी काम करते हैं जब उनको ऑर्डर मिलता है। कहाँ से? अपने मस्तिष्क से, हमारे माइंड से। तो माइंड में उनका डर भरा है, तो धीरे धीरे जैसे वो डर कम होने लगा तो सारे काम अपने आप होने लगे। For weeks I did just that. At first my legs refused to work, but they gradually relaxed. धीरे धीरे उनके legs फ्री हो गए, and finally I could command them. अब वो जो है legs के ऊपर कमांड करने लगा। पहले जो है लेग के ऊपर उनका कोई कमांड नहीं था। फिर क्या हुआ? आई होप आप समझ रहे होंगे, बहुत इजी लेसन है। आगे, दस पीस बाय पीस ही बिल्ड ए स्विमर। तो इसी तरीके से धीरे 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 उस इंस्ट्रक्टर ने एक स्विमर निर्माण किया। किसके बारे में बोल रहा है? अपने खुद के बारे में, विलियम डगलस। एंड व्हेन ही हैड परफेक्टेड ईच पीस, जब उन्होंने एक एक चीज मुझे सिखा दी, ही पुट देम टुगेदर इनटू एन इंटीग्रेटेड होल। इन अप्रैल ही सेड, और अप्रैल के महीने में उन्होंने कहा, नाउ यू कैन स्विम। हर एक चीज़, पेडलिंग सिखा दिया है ना, पानी में किक करना सिखा दिया, इनहेल करना सिखा दिया, एक्सेल करना सिखा दिया, ठीक है, हाथ कैसे चलाना वो सिखाया होगा, फ्लैट कैसे होना है वो सिखा दिया होगा, है ना, स्किमिंग करना सिखा दिया होगा, एवरीथिंग। स्विमिंग के जो जितने भी पीसेस है सब उनको सिखा दिए। इंटीग्रेटेड होल मतलब इंटीग्रेटेड है कंप्लीट। और अप्रैल में इंस्ट्रक्टर ने कहा, नाउ यू कैन स्विम, अब आप तैर सकते हैं। डाइव ऑफ, चलिए डाइव लगाइए। एंड स्विम द लेंथ ऑफ द पूल, क्रॉल स्ट्रोक। चलिए क्रॉल स्ट्रोक एक जो है एक तरीका होता है क्रॉल स्ट्रोक, ठीक है, स्विमिंग का। तो उसको बोला है क्रॉल स्ट्रोक, ठीक है, ध्यान में रखना, कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, डाइव ऑफ एंड स्विम द लेंथ ऑफ द पूल। चलिए डाइव करिए और डायरेक्ट जंप करिए, डाइव करिए, समझते ना, डाइव जंप करना। आई डीड, द इंस्ट्रक्टर वॉज फिनिश। और जैसी मैंने वो किया, इंस्ट्रक्टर का काम खत्म हो गया। इंस्ट्रक्टर वॉज फिनिश्ड मतलब इंस्ट्रक्टर का जो वर्क है, देखिए मेटाफर यूज हुआ है, मेटाफर बोलते हैं इसको, फिगर्स ऑफ स्पीच। ये पूरा का पूरा इंस्ट्रक्टर का काम अभी खत्म हो गया, मतलब मैं अब स्विमर बन गया, अभी मुझे किसी कोच की जरूरत नहीं थी। बट आई वॉज नॉट फिनिश्ड, द इंस्ट्रक्टर वॉज फिनिश्ड बट आई वॉज नॉट फिनिश्ड। कुछ बाकी था मेरे अंदर। क्या? आई स्टिल वंडर्ड इफ आई वुड बी टेरर स्ट्राइकन व्हेन आई वॉज अलोन इन द पूल। अभी तो कोई ना कोई मेरे आसपास थे, अभी भी मुझे डर ये लग रहा था कि क्या मैं सचमुच अकेले तैर पाऊंगा, या वही डर फिर से एक बार मेरे अंदर वापस आ जाएगा। आई ट्राइड इट, तो चलो मैंने सोचा चलो ट्राई करते हैं। आई स्वैम, स्विम का पास्ट टेंस, आई स्वैम द लेंथ अप एंड डाउन। मैं गया एक बार तैर के और वापस आया। टीनी वेस्टिजेस ऑफ द ओल्ड टेरर। देखिए टीनी वेस्टिजेस यानी होता है स्मॉल पीसेस, टीनी वेस्टिजेस स्मॉल पीसेस, बचे कुचे पीसेस। अब थोड़ा सा डर बचा था, ठीक है, तो वो बचा कुचा डर जो है वो स्मॉल टीनी टीनी यानी स्मॉल वेस्टिजेस जो ऑफ द ओल्ड टेरर वुड रिटर्न। जब मैं अकेले तैर रहा था तो वो छोटे छोटे पीसेस डर के वापस आए। बट नाउ आई कुड फ्रॉन एंड से टू द टेरर। लेकिन अब मैं उनके साथ लड़ सकता था। आई कुड फ्रॉन, मैं उनको जवाब दे सकता था। किसको? टेरर को। देखिए पर्सोनिफाइड किया है फिर से, बहुत अच्छा यूज है। और मैंने जैसी वो टेरर के छोटे छोटे टुकड़े मेरे पास आए, मैंने कहा, ट्राइंग टू स्केयर मी, तुम मुझे डरा रहे हो?
ओ वेल, हियर इज टू यू, लुक, चलो तुम्हारे सामने मैं खड़ा हूं अब, जो तुमसे मैं अभी नहीं डरता, तुमने मुझे बहुत डरा लिया, बहुत समय तक डरा लिया। एंड ऑफ आई वुड गो फॉर अनदर लेंथ ऑफ द पुल, और पहला एक अप एंड डाउन करने के बाद फिर से एक बार उन्हें डाइव लगाई और दूसरे बार वो दूसरे छोर से तैर कर वापस आ गए। दिस वेंट ऑन अंटिल जुलाई। देखिए अप्रैल से जुलाई तक, ठीक है ना, अप्रैल और जुलाई, तो ये कब तक चला? जुलाई तक चला, मतलब 2-3 महीने और चला। बट आई वॉज स्टिल नॉट सेटिस्फाइड, लेकिन अभी भी मैं सेटिस्फाइड नहीं था, कुछ डर अभी भी बाकी था। आई वॉज नॉट श्योर दैट ऑल द टेरर हैड लेफ्ट, मुझे अभी तक ये लग रहा था कि पूरा का पूरा टेरर अभी खत्म नहीं हुआ। सो आई वेंट टू लेक वेंटवर्थ इन न्यू हैम्पशायर, तो मैं कहाँ चला गया? थोड़ी सी गहरी झील या जो भी होगा, लेक वेंटवर्थ में वो चले गए। अब लेक है ना, पुल नहीं है, ठीक है, वहां मैं चला गया हैम्पशायर में। डाइव्ड ऑफ ए डॉक एट ट्रिग्स आइलैंड, ओके, डाइव्ड ऑफ ए डॉक, डॉक यार्ड होता है, डॉक जहां शिप्स रहते हैं छोटे छोटे, एट ट्रिग्स आइलैंड, और ट्रिग्स आइलैंड में गए। एंड स्वैम 2 miles अक्रॉस द लेक टू स्टैम्पैक्ट आइलैंड, और पूरा एक आइलैंड से, छोटे आइलैंड से दूसरे आइलैंड तक लगभग 2 मील का सफर उन्होंने तैर कर पार किया। देखिए सारी चीजें वो क्यों कर रहे हैं विलियम डगलस? ताकि उनके अंदर का जो डर है वो खत्म हो जाए, डर का कोई नामो निशान ना रहे, वो डर को जो है एकदम से कंप्लीटली गुड बाय बोल सके, इसलिए वो पुल से बाहर निकले। और अभी वो देखिए लड़ने का जिद देखिए उनका, है ना, कि कैसा उन्होंने ठान लिया है कि मैं ये पानी के डर को मेरे अंदर से खत्म कर दूंगा। आई स्वैम द क्रॉल, ब्रेस्ट स्ट्रोक, साइड स्ट्रोक, बैक स्ट्रोक, एवरीथिंग, ये सारे के सारे टाइप्स हैं, हाँ, कंफ्यूज नहीं होना है। सारे के सारे टाइप्स उन्होंने कर लिए, कौन से? क्रॉल, ब्रेस्ट स्ट्रोक, साइड स्ट्रोक एंड द बैक स्ट्रोक, ठीक है, ये सब के सब क्या है? द सम काइंड्स ऑफ पीसेस ऑफ स्विमिंग। ओनली वंस डिड द टेरर रिटर्न, बीच में एक बार हुआ, जाते जाते कोई खाई होगी गहरी अंदर ही, है ना, एक बार टेरर वापस आया, मतलब डर वापस आया। वेन आई वॉज इन द मिडल ऑफ द लेक, कहाँ पर? जब वो मिडल में थे लेक के, वो 2 मील की बात कर रहे हैं, 2 मील में जब गए थे ना, एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड। आई पुट माई फेस अंडर एंड सॉ नथिंग बट बॉटमलेस वाटर, मैंने मेरा सिर नीचे ले गया और देखा नीचे तो क्या था? और ये कुछ भी नहीं था, पूरा पानी पानी, बॉटमलेस वाटर, मतलब बॉटम नहीं दिख रहा था। स्विमिंग पूल में तो उनको बॉटम दिख जाता था। द ओल्ड सेंसेशन रिटर्न इन मिनिएचर, तो पुराना डर जो है, पुराना सेंसेशन जो है, छोटे फॉर्म में फिर वापस आया। मिनिएचर मतलब स्मॉल फॉर्म, थोड़ा सा डर बचा है ना, उसको भी तो भगाना, इसीलिए तो वहां आए हो। आई लाफ्ड एंड से, मैं जोर से हंसा उसकी तरफ देखकर, डर की तरफ देखकर। देखिए हाउ फाइन, इन ए फाइन वे ही डिस्क्राइब दिस थिंग। आई लाफ्ड एंड सेड, मैंने हंसा और कहा, वेल मिस्टर टेरर, ओ मिस्टर टेरर, वेल मिस्टर टेरर, टेरर है ना डर, व्हाट डू यू थिंक यू कैन डू टू मी, अब आप मुझे क्या कर सकते हैं बताइए। इट फ्लेड, और जैसी मैंने उससे आंख से आंख मिलाई, उससे सवाल जवाब करना चालू किया कि तुम जो मेरा कर सकते हो अब करो, ओके। इट फ्लेड, फ्ली का पास्ट टेंस फ्लेड, फ्लाई है ना, फ्ली, फ्लेड, फ्लेड मतलब वो भाग गया, कौन भाग गया? डर भाग गया। एंड आई स्वैम ऑन, और मैं तैर कर चला गया। ये कहानी से जो है शिक्षा हमको ये मिलती जा रही है कि डर जो है एक हमारा साइकोलॉजिकल मैटर है। डर जो है 100% जो है ये हमारे शरीर से संबंधित नहीं है, ये हमारे माइंड से संबंधित कोई रोग जैसा है, कोई डिजीज है, मेंटल डिजीज है। तो उसको हम हमारे साहस से,
हमारे महत्वाकांक्षा से, हमारे डिटर्मिनेशन से दूर कर सकते हैं, ना कि किसी दवाई से ये दूर होगा। कोई फिजिकल डिजीज होगा तो दवाई से दूर होगा, लेकिन विलियम डगलस बहुत एक विद्वान व्यक्ति है और साहसी व्यक्ति है। उन्होंने डिसाइड किया था कि जो मेंटल ट्रॉमा से वो गुजर रहे थे, इससे वो बाहर निकलेंगे। वेल मिस्टर टेरर, व्हाट डू यू थिंक यू कैन डू टू मी? इट फ्लेड एंड आई स्वैम ऑन। चला गया और मैंने पूरी वो 2 आइलैंड की दूरी पार की। ओके, सो हियर आर सम एक्सप्लेनेशन एंड वर्ड मीनिंग्स ऑल्सो है ना। केबल, स्लैक, रिड्यूस करना, शेड एंड रिमूव्ड, पैनिक एंड fear seized means grief. So we will see the last part now. 8 I had residual doubts. तो कुछ रेसिडुअल डाउट्स, देखिए कंप्यूटर का वर्ड है रेसिडुअल। आपने अगर देखा ना, रेसिडुअल फाइल्स होती है, आपके मोबाइल में भी होती है, आपको याद होगा, है ना, आपने देखा होगा रेसिडुअल फाइल्स। ओके, मोबाइल के अंदर भी हमारे होती है। आई हैड रेसिडुअल डाउट, लेकिन कुछ डाउट्स मेरे अंदर थे। डर तो निकल गया था, लेकिन कुछ डाउट्स थे। At my first opportunity, I hurried west, went up to the Teton and Conrad Meadows, up the Conrad Creek Trail to Midday Glacier, and camped in the high meadow by the side of the warm lake. अब मैं थोड़ा सा उस डर को, वो डाउट्स को भी पूरा क्लीन करने के चक्कर में था। तो मैं ने क्या किया, अकेले मैंने कैंप लगाया। कैंप लगाना मतलब रात भर रुकना कहीं, ठीक है। तो एक जगह जाकर जो है कैंप किया उन्होंने, रात भर वहीं रुके, हाई मिडोज बाय द साइड ऑफ द वार्म लेक। वार्म लेक के साइड में एक जगह रुके। द नेक्स्ट मॉर्निंग आई स्ट्रिप्ड, दूसरे मॉर्निंग जो है मैंने अपने आप को तैयार किया। स्ट्रिप्ड, स्ट्रिप्ड का मतलब वो जो कपड़े वपड़े होते हैं ना स्विमिंग के, वो पहने। डाइव्ड इनटू द लेक, रात भर वहाँ रुके, पूरा डिटरमाइन किया कि सुबह उठ के मुझे क्या करना है, और वार्म लेक में उन्होंने छलांग लगाई। द नेक्स्ट मॉर्निंग आई स्ट्रिप्ड, डाइव्ड इनटू द वार्म लेक, देखिए ये चल रहा है अपना, डाइव्ड इनटू द वार्म लेक एंड स्वैम अक्रॉस टू द अदर शोर एंड बैक, और दूसरे किनारे पर गए। और वार्म लेक में बहुत बड़ा कोई लेक होगा। दूसरे छोर पर वो गए और दूसरे छोर से वो वापस आए। जस्ट एज डॉग कॉर्प्रॉन यूज्ड टू डू, है ना, किसी एक स्विमर की वो बात कर रहे हैं। आई शाउटेड विद जॉय, वार्म लेक उन्होंने पार कर लिया था, तो डाउट्स भी जो थे, रेसिडुअल डाउट्स भी जो थे वो भी खत्म हो गए। आई शाउटेड विद जॉय एंड गिलबर्ट पीक रिटर्न द इको, जैसे वो चिल्लाए जोर से ऐसे हाथ ऊपर करके वार्म लेक के अंदर, तो वार्म लेक को लगकर जो है क्या है, गिलबर्ट के पीक है। पीक यानी पहाड़ होते हैं ना, हिल्स, जैसे है ना सह्याद्री हिल्स, नीलगिरी हिल्स, वैसे गिलबर्ट पीक से जो है उनके शाउटिंग ने जो है, उनके जो विक्टोरियस शाउटिंग जो कर रहे थे, जो जो से चिल्ला रहे थे, हैप्पीली जो चिल्ला रहे थे, इको आया वहीं से। रिटर्न टू द इको, रिटर्न द इको, आई हैड कॉन्कर्ड माई फियर ऑफ वाटर। और उनके वो शाउटिंग में क्या आवाज बाहर आ रही थी, एक अदृश्य आवाज थी उसके अंदर। क्या आवाज थी वो, इनविजिबल साउंड था उसके अंदर। क्या साउंड था, दैट आई हैड कॉन्कर्ड द फियर ऑफ वाटर, मैंने पानी के डर से मुक्ति पा ली है, मैंने पानी के डर के ऊपर विजय प्राप्त कर लिया है। द एक्सपीरियंस हैड ए डीप मीनिंग फॉर मी, ये जो एक्सपीरियंस था मेरे लिए बहुत ही डीप मीनिंग था। एज ओनली दोज हु हैव नोन स्टार्क टेरर एंड कॉन्कर्ड इट कैन अप्रिसिएट, तो ये वही लोग इसको अप्रिसिएट कर सकते हैं, वही लोग इस बात को समझ सकते हैं, इसकी प्रशंसा कर सकते हैं, इस बात को समझ सकते हैं जिन लोगों ने इस तरीके का एक्सपीरियंस अपने जीवन में झेला है। इन डेथ देयर इज पीस, बोलते हैं डेथ में जरूर पीस है, शांति है। देयर इज टेरर ओनली इन द फियर ऑफ डेथ,
देखिए, डेथ में कोई डर नहीं है, मरने में कोई डर नहीं है, बट देर इज टेरर ओनली इन द फियर ऑफ डेथ। लेकिन हाँ, टेरर किस में है? जब हम मृत्यु से डरते हैं। एज रूजवेल्ट न्यू हिन ही सेड, जब रूजवेल्ट को इस बात का पता चला, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट अमेरिकन प्रेसिडेंट को, उन्होंने कहा, ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ। कितनी अच्छी बात उन्होंने बताई। उन्होंने कहा कि विलियम, हमको सिर्फ किस बात से डरना चाहिए? हमको सिर्फ डर से डरना चाहिए, मृत्यु से नहीं डरना चाहिए। मृत्यु के डर से हमको डरना चाहिए। डरना चाहिए मतलब डर से छुटकारा हमको प्राप्त करना चाहिए। ओके, बिकॉज I had experienced both the sensation of dying and the terror that fear of it can produce. The will to live somehow grew in intensely. तो राइटर ये बोल रहे हैं कि क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में मृत्यु को कई बार देख लिया था, एकदम मृत्यु के वो समीप जाकर वापस आ गए थे, इसीलिए उनके अंदर ये जो विल टू लिव है, मतलब जीने की जो इच्छा शक्ति है, वो और ज़्यादा इंटेंसली, उसकी जो इंटेंसिटी है वो और ज़्यादा जागृत हो गई थी। एट लास्ट आई फेल्ट रिलीज्ड, आखिर में मुझे बड़ा रिलीज लगा, बड़ा रिलैक्स्ड लगा। फ्री टू वॉक द ट्रेल्स एंड क्लाइम द पीक्स एंड टू ब्रश असाइड फियर। पानी का डर उनसे पूरा खत्म हो गया था। तो पानी तो नीचे है किनारे पर, और किनारे पर बड़े बड़े पहाड़ है, तो है ना, वो जो ना गिलबर्ट पीक की बात उन्होंने की है। तो मैं एकदम से रिलैक्स हो गया, छोटे मोटे डाउट्स भी क्लियर हो गए, टेरर भी जो है मुझे गुड बाय करके हमेशा के लिए चला गया। अब मैं बिल्कुल रिलैक्स्ड हो गया था, बिल्कुल रिलीज्ड हो गया था सारी दुविधाओं से, शंकाओं से, कुशंकाओं से। फ्री टू वॉक द ट्रेल्स, अब मैं आसानी से जो है जो छोटे छोटे रास्ते हैं, ट्रेल्स है, ट्रेल्स का मतलब होता है वो घूमने वगैरह जाते हैं ट्रेल्स, हाँ, ट्रेल्स पहाड़ियों में ट्रेल्स होते हैं। एंड क्लाइम द पिक्स, ट्रेल्स पर मैं घूमने लगा, पिक्स पर जो है क्लाइम करने लगा। एंड टू ब्रश असाइड फियर, ब्रश असाइड मतलब पुट असाइड, कीप असाइड, और उसके उनके अंदर का जो डर था वो हमेशा के लिए दूर हो गया। देखिए, ये कुछ वर्ड के मीनिंग हमने यहाँ लिखे हैं, ठीक है। कॉन्कर्ड, स्टार्क, अप्रिसिएट, है ना, ब्रश असाइड है ना, गिव अप, छोड़ देना, पुट असाइड। ओके, तो ये पूरा का पूरा जो है एक्सप्लेनेशन है, आप पूरा देख लेना। वेरी फाइन स्टोरी। We will also discuss it in our good Google Meet classes every day also. Okay, so thank you very much, friends, and I hope you will certainly take some message. You will certainly learn a message of bravery, a message of, you see, determination, and this lesson will teach us. This lesson have taught us that whatever you might face in your life, whatever condition you may face in your life, you have to be very much steady. You have to be very much courageous, and then and only then you can overcome your fear. Okay, thank you very much.